This will be a quick revision. So just see where you all have the problems. And if you have any problem, you can definitely contact me on my DM. You can just you can just give me a message. I'll be able to solve your problems. Now the chapter, जो last हमारा chapter है, that is outcomes of democracy. Now very fast, सबसे पहले हमें क्या मतलब इसमें we will be only discussing the question, the chapter according to what we are going to get in boards. We are not going through the NCERT. Means it is going to be through the NCERT, but we will be discussing the questions according to boards. So when it comes to the word democracy, तो हमारा जो पहला definition है, which was given by Abraham Lincoln, a government of the people, by the people and for the people. It means it promotes equality. It enhances the dignity of an individual. मतलब कैसे हम कहते हैं वो of the people है, by the people है, for the people है. It improves the quality of decision making. जो हम लोग decisions लेते हैं, because when more people are involved, then definitely एक हमारा इंग्लिश में कहावत है कि many cooks spoil the broth. मतलब अगर बहुत सारे लोग मिलकर किसी काम को करते हैं तो वो खराब होता है. लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करें तो when many people are there and making one decision, तो सबकी राय को हम लोग लेकर चलते हैं. It cannot be that a single person is involved. So when it comes to democracy, when we say what is the definition of democracy, तो definition is a government of the people for. तो अब आपके पास आता है that democracy is better because it promotes equality. It enhances the dignity of a person. It gives decision in quality decision making. If there are any conflicts, it resolves it. And of course, it also allows room for correction. अगर कोई गलती होती है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं. तो ये कैसे होता है? Now the next question comes is, how does it happen? You may be having a direct question ki what is the political outcome of democracy, or you can be having democracy produces an accountable, responsive and legitimate government. ऐसा भी हो सकता है. Or else you may be given that democracy is based on deliberations and negotiations. तो just उसको मतलब कि explain करो. That means anything if it comes, you have to explain what is the meaning of accountability, what is the meaning of responsive, and what is the meaning of transparency. आपको ये सारी चीजें जो है इसके अंदर बताना होता है. Now let us come to accountable. अकाउंटेबल का वैसे मीनिंग होता बच्चा किसी भी चीज के लिए आपको जवाबदारी. मीन्स व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, अगर आप किसी काम को करते हो तो उस काम को करने के लिए आप जो हो यू आर रिस्पॉन्सिबल. तो दैट मीन्स यू हैव टू आंसर. अगर वो जो आंसर है, अगर वो काम गलत हो गया तो उस काम को आपको बताना होगा कि वो क्यों गलत हुआ. तो हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट? तो सबसे पहले आता है that democracy is based on deliberations and negotiations. जहां हम मुद्दे को आगे रखते हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं. we negotiate, we have the terms. हमारे यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, when any law is
implemented, when any issue is taken, तो पहले उसको जो है we have to give a proper deliberation. अब for example मैं आपको एक example कल का बताती हूँ, that yesterday Supreme Court जो है it has given that in 2016 when note demonetization was there, तो उस वक्त में तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब the Supreme Court has said that that period 57 days period was very less. यानी कि proper deliberation नहीं हुआ, तो the government has to face court or the anger of the people. तो हर एक चीज को उनको पहले deliberate यानी कि सामने मुद्दे को रखना पड़ता है, negotiate करना पड़ता है, and then they have to take a decision. Second, there is transparency. आप जो भी काम करते हो, right now you have so many machineries. एक आपका मशीनरी है RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन. आप गवर्नमेंट से किसी भी तरीके से whatever the work the government is doing, you can ask, ये काम क्यों नहीं हुआ, where the money has been spent, this is there, यानी कि nothing can be hidden. तो chances of corruption जो है वो कम होता है. I repeat, chances of corruption is less, but because so many people are involved in decision making, the decision is not taken by one person or many or a group. There is always delayed decision. आपका जो decision होता है वो थोड़ा सा delay हो जाता है. So that is how the political outcome says it produces an accountable, यानी कि which is answerable to the people if something goes wrong. Second is responsive, यानी कि it has to respond to the people's need. हम लोगों के पास, for the common public, we have the right to speech, the right to protest, we have the right to information. तो अगर हमारा कोई need है, if the people need something, अब need का मतलब क्या है, अब आप ये नहीं बोल सकते we need, उसका नाम क्या है, रोटी, we need का मतलब होता है certain times there might be some problems in the country. At that time the people look at the government कि government शायद उनको कुछ help करेगा, and if at that time the government is not responding, then what will happen is next time जब आपका vote आएगा तो उस वक्त में they may lose. और इसीलिए whenever there is any issue, the government has to respond to the people's demand. हमारे जो political parties होते हैं, हमारे जो oppositions होते हैं, they are the one who help us. अगर हमारी बात को नहीं सुनी जाती है तो they take up this matter in the parliament. The third is government, a democratic government politically is legitimate. Now what is the meaning of legitimate? The government is not chosen because of heir मतलब HEIR, heir मतलब parent से next parent, monarchy. It is not based on rich and poor, aristocracy. It is not based on religious dialects. It is based on elections. हमारे यहाँ in all the democratic government there is a limit of age. जैसे हमारे यहाँ 18 साल है, and after 18 years each of us have the right to vote. तो जो government को हम choose करते हैं, that is chosen through a proper system, and that is why we say that democratic government is legitimate. तो अगर हम ये सब कुछ देखते हैं तो हमें पता लगता है that in the political outcome the democracy is accountable, responsive, and it is also legitimate. Now comes to the economic outcomes.
In the economic outcome, if we look into the specifically, we look into the countries under dictatorship. When we look into the countries under dictatorship, हम देखते हैं कि they are having 4.05 कुछ ऐसा परसेंटेज है, whereas in the democracy it is only 3.94, यानी कि 0.10% का जो है फर्क आता है in economic outcome. And why this is because ऐसा क्यों होता है? Why there is difference? Because of delayed decision. In the economic outcome, आपको डिसीजन इमीडिएटली लेना पड़ता है. जहां आपका मोनार्की है, जहां आपका से मिलिट्री रूल है, वहां डिसीजन इमीडिएटली ले लेते हैं. लेकिन इन डेमोक्रेसी आपको पार्लियामेंट में रखना पड़ता है, आपको उस पर चर्चा करना पड़ता है, तो समटाइम्स द डिसीजंस आर डिलेड. सेकेंड रीजन, ये आपके रीजंस हैं बेटा, दिस यू हैव टू गिव इन योर पेपर क्लास 10. It is also due to high degree of unequal opportunities. जो रिच होते हैं, आपने वो आपके उसमें कार्टून है जिसमें ऊपर इतना मोटा होता है और नीचे पतला सा होता है, तो जो अपॉर्चुनिटीज है फॉर द रिच एंड पुअर, इट इज मतलब कि इनइक्वल. रिच को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, जल्दी मिल जाती हैं, whereas जो पुअर होते हैं they are not able to get those opportunities. और इसी की वजह से in the economic front democracy is slightly what we call as lagging behind other regimes. जैसे पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कुछ जो अल्ट्रा रिच होते हैं, they have high disproportionate share of wealth. And then when we come to the lower strata, वो लोग जो है डे टू डे अफेयर्स में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है. Like when pandemic came, तो पैंडेमिक के अंदर क्या हुआ था, जो रिच पीपल थे they were not that much affected, but those who were poor, उनका तो they had to face a lot of problems. This shows the unequal distribution of wealth. Next is social outcome. Now जब हम social outcome कहते हैं, तो social outcome का मतलब social outcome में आपके अलग अलग है. आपका एक है social diversity. You have social diversity. The second is dignity of citizens. The second is आपका dignity of citizens, यानी कि social diversity मतलब based on the caste, based on the religion, and dignity में आपके आ जाते हैं equality between men and women, empowerment of women, that comes under the. So how does a democratic government remove the social diversity? The government has to work. The government has to work with both majority and minority. जो गवर्नमेंट होती है वो ये नहीं सोच सकते, जैसे हमने बेल्जियम का एग्जाम्पल दिया था बेटा क्लास 10. एक बात याद रखना, that when such questions come, so this question will not come directly from this particular chapter. आपका ये क्वेश्चन जो है this would be correlated with another chapter. और यहाँ पर आपका जो है बेल्जियम का जो एग्जाम्पल है वो ले सकते हैं, श्रीलंका का जो एग्जाम्पल है वो ले सकते हैं. इन श्रीलंका you had seen the government had supported the majority, so the minorities were alienated. In Belgium also similar story was there, लेकिन they had accommodated. तो अगर एक गवर्नमेंट मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी दोनों को लेकर चलता है, then the conflicts are less. तो जो लड़ाई होती है वो आपका जो है कम हो सकता है. देखो कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं हो सकता है. You can never imagine that there is a euphoria. यूफोरिया मतलब अ परफेक्ट सोसाइटी जहां कोई झगड़ा नहीं कर सकता, बट यस जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो हमारे कम हो सकते. नेक्स्ट इज
dignity and freedom of the citizens. For example, हमारे यहाँ पर जेंडर, हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. हमने जो चैप्टर पढ़ा था, मतलब पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म एंड जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. तो जो जेंडर, रिलीजन एंड कास्टिज्म है, तो अगर हम देखें दैट वी ऑल आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेस ऑफ जेंडर, मेल और फीमेल, रिलीजन और कास्टिज्म. तो जो डेमोक्रेसी है, इट हैज, हमारे यहाँ पर क्या है, वी हैव स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन, वी हैव स्पेशल प्रोविजंस फॉर कास्ट, जैसे हमारे यहाँ रिजर्वेशन सिस्टम है. तो इन सब की वजह से देयर हैज बीन इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड. मैं क्या वर्ड यूज कर रही हूं बच्चे? इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड? गवर्नमेंट हमको बराबर जो है हिस्सा देती है. वो हमारी प्रॉब्लम है कि हम उसे नहीं लेते हैं. The government does not discriminate us because we are men or women. The government does not discriminate because we are belonging to a certain caste. In fact, हमारे यहाँ पर universal adult franchise जो है, that gives equal right to everyone for voting. Then in the third tier, we have, मतलब कि 1/3 आपका जो है positions are reserved for women. तो ये जो रिजर्वेशंस हैं, they are all to provide equality, dignity, to provide freedom. तो ये जो सारे के सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ने दिया है, this tells that it enhances people on the basis of gender or religion or caste. In our country, we are practicing secularism. We are practicing secularism. तो secularism से क्या होता है? No religion stands above other. कोई रिलीजन किसी रिलीजन के ऊपर नहीं है. Everyone has the equal right to profess, practice their own beliefs. यानी कि जेंडर, रिलीजन, कास्ट, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उसको हटाता है डेमोक्रेसी, by providing us different rights, different reservations, by providing us the provision of secularism. That means democracy जो है, it is better than any other regime. But democratic examination never gets over. This is a special question, and this question has come in the paper many a times. Democratic examinations never gets over. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हमारी कंट्री जो है, it has adopted democracy, तो now there would be always equality. वो happy ending नहीं होगी, वो हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर. ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता. एज वन टेस्ट इज क्लियर, जैसे आपके में है, एक प्री बोर्ड हुआ तो दूसरा हो गया, दूसरा प्री बोर्ड खत्म होगा तो फाइनल्स आ जाएंगे, फाइनल खत्म हुए तो 11th स्टैंडर्ड आ जाएगा, 11th के अंदर आओगे तो पीरियोडिक असेसमेंट आ जाएगा, पीरियोडिक खत्म होगा तो हाफ ईयरली आ जाएगा, हाफ ईयरली खत्म होगा तो फाइनल्स आ जाएंगे. सो एज वन मतलब की टेस्ट इज क्रॉस्ड, अनदर टेस्ट इज प्रोड्यूस्ड. अगर हमने, जैसे हमारे यहाँ पर इन द इनिशियल we did not have many of the rights, लेकिन जैसे जैसे we were able to produce a proper government, बहुत सारी चीजों को ऐड किया, जैसे 27% रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी. तो एक तरफा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया,
लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो बैकवर्ड कम्युनिटीज थे, दे वर नॉट गेटिंग द उनको जो है नहीं मिल रहा था बेनिफिट, तो 27% उनके लिए किया गया। अभी रिसेंटली जस्ट 3 or 4 years back there was some provision for the EWS quota, that is those people who are belonging to economically weaker section। तो जो गवर्नमेंट के जॉब्स हैं, कॉलेज में जो एडमिशंस हैं, उनके लिए रिजर्वेशन को ऐड किया गया। यानी अगर हम ये कहें कि इकोनॉमिकली हमने ठीक कर दिया, पॉलिटिकली नहीं हुआ, तो सर्टेन थिंग्स आर एडेड। अगर हमें लगता है पॉलिटिकली, जैसे आरटीआई वाज इन मतलब कि एडेड लेटर ऑन, पहले हमारे यहाँ पर आरटीआई नहीं था, बट राइट टू इंफॉर्मेशन वाज एडेड लेटर ऑन। हमारे यहाँ फेडरलिज्म में in the starting we had 2 tiers, only the union level and the state level. The third tier, that is the local level, was added later on in 1992। तो एक चीज खत्म होती है तो दूसरी चीज को हमें समझना पड़ता है। and then people demand more। अब यहाँ पर डिमांड का मतलब इट इज नॉट दैट दे आर डिमांडिंग। अगर मान लो आपको कोई चीज नहीं पसंद है, मान लो आप एक शादी में गए और आपको वहां खाना नहीं पसंद आया, तो जबरदस्ती तो नहीं है ना कि आप दूसरा प्लेट खाओगे, लेकिन अगर आपको कोई चीज पसंद आती है तो आप उसको और मांगते। When you like something, आप कहते हो थोड़ा और खा लेते हैं। इसी तरीके से if people are satisfied with democracy, then only they will demand more। तो द फैक्ट, ये पेपर का क्वेश्चन है जो मैं अभी लिख रही हूं, द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ अ टेस्टिमोनी ऑफ डेमोक्रेसी सक्सेस। मतलब अब यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज कम इन 5 marks। मीन्स जब आपको किसी चीज को यू वांट टू इम्प्लीमेंट, यू वांट टू ब्रिंग समथिंग, आप समझ लीजिए आपके घर में कोई नई चीज आप लाना चाहते हो एंड यू फील दैट दैट पर्टिकुलर थिंग इज वेरी गुड, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं, तो आप क्या कहते हो, अगर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए तो वी वुड टेक इट। तो व्हेन यू आर हैविंग satisfaction, testimony means evidence। टेस्टिमोनी का मतलब होता है बच्चा एविडेंस। आपकी बुक का ही ये मतलब की वर्ड है, दिस इज अ वर्ड फ्रॉम योर बुक ओनली, ऑल ऑफ दीज आर योर बुक्स, बुक का वर्ड है। तो द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ अ टेस्टिमोनी ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब नाउ पीपल वांट दैट वी शुड मोर एंड मोर इन्वॉल्व। अब क्या है, मोर पीपल आर इन्वॉल्व। पहले ऐसा नहीं होता था। अब क्या होता है, चाहे हम फॉलोवर्स हो, चाहे हम सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हो, ट्विटर पे फॉलो कर रहे हो, या फिर हम लोग एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हो और वी आर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। पहले क्या होता था, 46% to 50% का वोटिंग रहता था, बट अब क्या होता है, मैक्सिमम पीपल वांट टू एक्सरसाइज देयर वोट। पहले ऐसा नहीं था। तो इस वजह से क्या हो रहा है, that we are able to understand कि there are so many मतलब की provisions, लेकिन उन provisions को, जैसे हम एक छोटी सी चीज कहते हैं RTI। RTI is a very important right, लेकिन हम में से कितने लोगों को पता है कि हमारे पास RTI है। जब हम इन्वॉल्व होंगे तो हमें पता होगा, और अगर हमें पता होगा तो हम गवर्नमेंट की गलतियों को निकाल सकते हैं। We can ask for the transparency, and this is why we can say that other than any other regime, अब कौन कौन से regime है, इसी चैप्टर में आपके आ सकता है, you have non democracy, यानी कि जहां लोगों को कोई भी राइट्स नहीं होते, एंड यू हैव डेमोक्रेसी, यानी कि वो जहां द पीपल आर द रूलर्स, द पीपल डिसाइड द रूलर्स,
the people are involved in choosing their rulers. So non democracy आपका military. Bangladesh and Pakistan, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान दोनों जो हैं they have been under military rule. Then you have dictatorship, like in Russia you had Stalin, in Germany you had Adolf Hitler. Then you have aristocracy. Aristocracy is actually not any particular government form, लेकिन जो पुराना जमाना होता था 17th and 18th century, उसमें जो rich people होते थे, they used to have more power in deciding. They used to have more power in deciding. Then you have the religious, मतलब कि जहाँ religious जो leaders होते हैं, they have more power. Like 17th 18th century में होता था, either the aristocrats or the religious leaders had the power. Whereas आपका जो democracy है, it is completely the rule by people. It is completely the rule by people. इसके अंदर ना आपका no doubt, हम लोगों ने political वो वाले पढ़ा था, जो political parties में पढ़ा था, that while we are electing our representatives, many a times people use their family pressure, लेकिन उसके लिए भी we have certain provisions. उसके लिए भी we have certain family, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हम लोगों को कुछ प्रोविजंस देता है. हमने लिया नहीं, वो हमारी गलती है. लेकिन गवर्नमेंट, आप ये नहीं बोल सकते हो that you cannot force. You can force. If you have the RTI, if you know how to exercise your rights, right to vote, right to profess, right to protest, right of freedom, right of speech, अगर आप इन rights को use कर सकते हो, तो you can definitely call. So this is how democracy is a better government than any other. When we say aristocrats, यानी कि जो rich people होते हैं, in the earlier times, let us take Greek. Yes, we can take Greek. Greek के अंदर आपका क्या था, जो आपके जो rich people होते थे, the people who had enormous wealth, they used to have the power. हमारे यहाँ पे भी tribals में होता है, तो उनके पास जो है they have the power to decide. क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे, लोग क्या करते, हम नहीं, लोग क्या करते थे, they would allow the rich people, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास पैसा है, तो वो लोग जो है they can tackle all the problems. धीरे 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 जो है they started using their money with power to suppress others. उसको हम aristocracy कहते हैं. और मोनार्की आपका होता है राजा, जिसमें हम किसी एक इंसान को अपना राजा मान लेते हैं. जैसे हमारे यहाँ श्री राम वॉज द राजा, कृष्ण भगवान वॉज द राजा, दुर्योधन वॉज द राजा, मतलब हम सब इन सबको राजा मानते हैं. और जो यहाँ इनके नीचे होते हैं उनको हम प्रजा मानते हैं. तो मोनार्की आपका होता है. अब मोनार्की में क्या होता है, यू डोंट हैव द पावर टू से एनीथिंग. अगर राजा खराब है, राजा किसी वजह से खराब है, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो राजा अगर खराब है तो you cannot speak, you cannot exercise any of your right. राजा अच्छा है तो ठीक है, जैसे कहते हैं प्रभु श्री राम के जमाने में बहुत अच्छा राज था, मैं तो नहीं रही लेकिन कहते हैं, तो राजा अच्छा है तो प्रजा खुश है. लेकिन अगर राजा खराब है, जैसे we say औरंगजेब was not a good king, तो देन प्रजा परेशान रहेगी. और उसके बाद क्या होता है, जैसे हम कहते हैं बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा हुमायूं का बेटा बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह जफर. तो वो पूरी डायनेस्टी उनके ही बेटों से चलती रही. उसमें हम लोगों ने जो हिस्ट्री में पढ़ा है, हमने पढ़ा है हुमायूं वॉज गुड,
बाबर टू सम एक्सटेंट ही वाज गुड, अकबर वाज टू गुड, लेकिन जहांगीर या फिर औरंगजेब, इन सब के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते. दैट इज मोनार्की, राइट? So this is what we call as outcomes of democracy. Understand? You will be having more of the dams, यानी कि आपके मैप क्वेश्चंस जो है वो important है इस चैप्टर से. They are important. And then you will be having some questions like importance of water आपका, then importance of dam, आपके जो डैम्स हैं उनका इम्पोर्टेंस, देन देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स, यानी कि डैम से हमें क्या पॉजिटिविटी मिलती है और क्या नेगेटिविटी मिलती है. देन यू विल बी हैविंग हाउ वी कैन कंजर्व वाटर, क्योंकि दिस इज अ जनरल क्वेश्चन. This may not be exactly related to the chapter, but this is a generalized question कि आपका जो water है उसको हम किस तरीके से conserve कर सकते हैं. Like we have the rain water harvesting system, and ये जो rain water harvesting system है ये पुराने जमाने में अलग तरीके से, then in the modern times also in places like हिमाचल आपके अलग है, इन प्लेसेस आपके लाइक राजस्थान आपका अलग है, इन आपके मेघालय अलग है, तमिलनाडु में अलग है. तो ये आपके जो है दिस कैन बी देयर. तो ये आपके जो है 3-4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं इन द वाटर रिसोर्सेज चैप्टर. तो सबसे पहले लेट अस कम टू द फैक्ट दैट वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स. अगर हम कहते हैं तो वाटर को हम लोग जो है रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर लेकर आते हैं. द फर्स्ट चैप्टर सेज वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स. दिस इज बिकॉज आपके रेन आती है, बारिश आती है, ग्राउंड वाटर में पानी आपका जमा होता है. In the rivers, the water is deposited. The glaciers are there in the Himalayas, and that becomes a water source for us. But on the other hand, only 1/4 of the water that we have is fresh. 75% हमारा जो है that is आपका 3/4 जो है that is covered with water. वो आपका जो है 3/4 हमारा covered है, लेकिन उसमें से सिर्फ 1 particular percentage है जो fresh water है. And इनमें से maximum जो fresh water है they are either in the glaciers, आपके जो glaciers है वहां पर है, या फिर दे आर इन द एरियाज जहां पर इट इज नॉट, वी आर नॉट एबल टू रीच. और इंडिया, इफ वी कम टू द पर्टिकुलर थिंग, तो इंडिया का जो है ओवरऑल जितनी बारिश होती है उसका 4% जो है वी गेट द प्रेसिपिटेशन. ये आपके जो है दीज क्वेश्चंस कैन बी एज योर फिल इन द ब्लैंक्स. इन योर MCQs जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, don't expect all the questions to be complete objective. It can be MCQs, it can be assertions, it can be fill-ups, it can be match the column, or it can be inference. तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो India is receiving only 4%, and it is said that by 2025 large parts of India will be under water scarcity. और अभी हम कौन से साल में हैं? 2023 में. हम अभी हैं 2023 में, यानी कि within 2 years India will be under water scarcity. Already अगर आप देखो तो तमिलनाडु के कुछ हिस्से आपके हैं, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं, इवन इन एरियाज लाइक पंजाब वी आर हैविंग द वाटर स्क्योसिटी. तो दिट इज व्हाट वी नीड टू कंजर्व वाटर, और इसीलिए हम लोगों को जो है पानी को बचाना है, पानी को सही तरीके से मैनेज करना है. इन द what you call as पानी कैसे आपके जमा होता है? When the rain falls, तो जो आपका जमीन होता है
उसके अंदर आपका जो पानी है that goes in deposits and it is said that a particular portion जो पानी जहां नीचे जाके जमा हो जाता है उसको हम कहते हैं aquifer, means the area जहां पानी आपका जमा हो जाता है। तो अगर हम धीरे धीरे ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं, ग्लोबल आपका वार्मिंग है तो बारिश प्रॉपर नहीं होती है, रिवर्स हमारे सूख गए हैं, तो व्हाट विल हैपन, वी वुड नॉट बी हैविंग ड्रिंकिंग वाटर। से जापान है, बाली, रिसेंटली मतलब कि अभी आज ही मेरी डॉटर वापस आई है बाली से, तो शी वाज सेइंग कि वहां पर even a glass of water has to be bought. Reason, that's a area which is near sea, they don't have the river system, तो वहां पर आपका जो है फ्रेश वाटर नहीं है। यू गो टू यूएई, आप दुबई वगैरह में जाओ, पेट्रोल आपका सस्ता होगा लेकिन पानी आपका महंगा होगा। द रीजन इज दे डोंट हैव द रिवर्स। इंडिया में रिवर्स है, वी आर हैविंग रिवर्स, वी आर हैविंग एम्पल रिवर्स, लेकिन फिर भी अगर पानी सूखा पड़ेगा तो आप उसको कैसे यूज करोगे? तो इसीलिए नाउ व्हाट आर द what we call as reasons for water scarcity, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है what are the causes, बहुत इजी क्वेश्चन होता है एंड नॉर्मली इट विल बी कमिंग इन 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन। तो अभी जो से मैंने बताया आपको ओवर यूज, हम लोग जो है एग्रीकल्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सप्लॉइट करते हैं हम लोग पानी को, क्योंकि हमको कमर्शियल क्रॉप्स लेने हैं तो हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। देन देयर इज अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, किसी किसी को पानी इतना मिलता है कि वो पानी को बहा रहा है और किसी किसी को जो है पानी मिलता ही नहीं है। लार्ज पॉपुलेशन, भाई जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी जरूरत होगी। देन अर्बनाइजेशन, अर्बन जो सोसाइटीज हैं जहां आपकी स्काई राइजिंग बिल्डिंग है वो, मॉडर्नाइजेशन, देन आपके जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इंडस्ट्रीज जो है वो भी पानी को यूज करते हैं, दे यूज वाटर। तो व्हाट कैन वी डू, हाउ कैन वी कंजर्व द वाटर, ये तो हमारे हैं वाटर एक्सप्लॉइटेशन एंड दिस कैन कम फॉर 2 और 3 मार्क्स। ये वाला जो क्वेश्चन है आपके 2 या 3 किसी में भी आ सकता है, तो दिस यू हैव टू राइट। तो नाउ इन 1950 when India had 1943 में India had the first famine which was very wide, मतलब बहुत ज्यादा, अराउंड 30 लाख पीपल जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो उस वक्त में इट वाज सेड कि अगर इंडिया जो है किसी भी महामारी से बचाना चाहता है तो खुद को फूड सफिशिएंट बनाना पड़ेगा। एंड एट दैट टाइम 1943 we did not have, but when India attained the freedom, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने डैम्स जो है उनको एस्टैब्लिश किया and he called dams as the temples of modern India, यानी कि जहां पर हम जाने के बाद which will be giving us the blessings, dams will be the blessings because it would increase the industrial production, it will increase the agricultural production, और इसीलिए उन्होंने डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला। ये आपका 1 मार्क में आ सकता है कि who said that dams are the temples of modern India, and this is what how he kept the, उन्होंने जो है इनॉग्रेट किया था भाखरा नंगल डैम, that was the first dam. Now what is a dam? It's a barrier that is across a river, जो कि पानी मतलब कि किसी भी रिवर उसके ऊपर बनाया जाता है, and it will, what will the dam do? That would obstruct or retard the flow, पानी की जो मतलब कि फ्लो है उसको कम कर देता है या फिर उसको रोक देता है।
एंड उस पानी को हम लोग एज अ रिजर्वॉयर या लेक में ले जाकर हम उसको यूज करते हैं. वी कैन यूज द वाटर फॉर मल्टीपर्पस. नाउ व्हाट आर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स? What are multi-purpose projects? यही जो आपके डैम्स हैं बेटा, इन्हीं को हम लोगों ने मल्टीपर्पस में यूज किया है. We have used dams for irrigation. हमने उससे जो है पानी को मतलब कि अपने एग्रीकल्चर के लिए यूज किया है. We have used it for producing electricity. We have used it for tourism. यानी कि एक रिवर, एक डैम, लेकिन उससे हम जो है अलग अलग जो है चीजों को यूज कर पा रहे हैं. We are using it for different purpose, and that is why these are called as multi-purpose project. यानी कि एक काम नहीं होता है, इससे अनेकों काम हो जाते हैं. तो they can then apart from this they also control the flood. डैम्स को अगर हम बिल्ड करते हैं तो वो हमें जो है फ्लड को भी मतलब कि रोकने में मदद करता है. देन फिश ब्रीडिंग, क्योंकि पहले तो फिश ब्रीडिंग वाज नॉट अ कल्चर, लेकिन आजकल जो है फिश ब्रीडिंग हैज बिकम अ बिजनेस. तो आप उस जगह पर जो है फिशेस को ब्रीड कर सकते हो और आप उनको जो है यू कैन यूज इट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, यू कैन यूज फॉर फूड पर्पसेस. यानी एक डैम से हम इतनी सारी चीजें करते हैं. बट आपके पेपर का क्वेश्चन है दैट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स हैव बीन अंडर स्क्रूटनी. मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स have been under scrutiny, यानी कि उनको जो है हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है. क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? Yes, they give us irrigation, they give us the benefit of electricity, they help in recreation, they help in flood control, in fish breeding. उसके बावजूद sometimes due to dams आपका जो नेचुरल फ्लो है इट इज इफेक्टेड. आपका जो नेचुरल फ्लो है वो आपका अफेक्ट हो जाता है. सेकेंडली इट कॉजेस सेडिमेंट. जो आपके एलुवियल सॉइल होता है, जो रिवर में होता है, वो आपका जो है सेडिमेंट बनकर एक जगह पे जमा हो जाता है. तो जो हमारे लैंड होता है वो इनफर्टाइल हो जाते हैं. देन जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि पानी में जो एनिमल्स रहते हैं, वो आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि उनका जो नेचुरल फ्लो है वो खत्म हो जाता है. व्हेन वी आर बिल्डिंग द डैम्स, जब हम डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो मेनी पीपल जो हैं दे आर डिस्प्लेस्ड. बहुत सारे लोग जो हैं उनको उस जगह को छोड़कर जाना पड़ता है. देन दे समटाइम्स दे आल्सो इंड्यूस अर्थक्वेक्स. पानी आपका ज्यादा जमा होता है तो अर्थक्वेक्स. देन वाटर बॉर्न डिजीज, आपके जो मतलब कि पानी की वजह से जो डिजीजेस होती हैं लाइक आपका कॉलरा, ऐसे डिजीजेस हो जाते हैं. देन पोल्यूशन due to excessive use. यानी even though there are many positive points, लेकिन ये आपके कुछ negative points भी हैं due to the multi-purpose project. ये जो मैंने अभी ऊपर लिखा था यहाँ पर आपका that आपके डैम्स में positive and negative आएगा, तो this is the one. This is the one. Positive आपके ये वाले ऊपर वाले हैं and negative आपके नीचे वाले हैं. These are all the positives and ये जो नीचे लिखा है these are all the negatives. So now there have been many movements. Multi-purpose project के against there have been many movements. जैसे आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, आपके पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज नर्मदा बचाओ आंदोलन. It was a movement started by Medha Patkar.
जिनका मानना था कि नर्मदा रिवर यानी कि आपका जो है नर्मदा रिवर के ऊपर अगर आप डैम बनाते हो तो मेनी पीपल विल बी डिस्प्लेस्ड एंड वहां का जो लैंड है वो आपका खराब हो जाएगा, लोकल कम्युनिटीज को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। लेटर ऑन नर्मदा बचाओ जो है इट वाज आल्सो, उसको जो है और कई मूवमेंट्स के साथ जोड़ दिया गया था। इट वाज ऑन सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा के ऊपर बना है। दिस कैन बी अ मैप क्वेश्चन, दिस कैन बी अ मैप क्वेश्चन। द डैम अगेंस्ट विच देयर वाज अ मूवमेंट। तो नर्मदा बचाओ, नर्मदा रिवर आपका जो है सरदार सरोवर डैम ऑन रिवर नर्मदा। टेहरी डैम, दिस इज इन आपका उत्तराखंड। एंड देन देयर हैव बीन मेनी इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स आल्सो। आपके जो आपस में हमारे जो स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र एंड आंध्रा में, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में ऑन रिवर कावेरी देयर इज वाटर डिस्प्यूट। दिस इज बिकॉज उसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो एक जगह फ्लो होता है, लेकिन तमिलनाडु डज नॉट हैव एनी रिवर ऑफ इट्स ओन, उसके पास अपना कोई रिवर नहीं है, तो इट डिपेंड्स ऑन रिवर कावेरी। लेकिन जो कर्नाटका है दे डोंट वांट टू शेयर, तो देयर हैव बीन यू नो, और ऐसा कहा जाता है एक जोक में कि अगर कभी तीसरा विश्व युद्ध होगा तो दैट वुड बी ओनली ऑन वाटर। तो व्हाट वी नीड टू डू, अगर वाटर से इतना फायदा भी है और वाटर से इतने प्रॉब्लम्स भी है तो व्हाट वी नीड टू डू। So these are the states: Himalayas, Rajasthan as per your syllabus, Bengal, Meghalaya, Tamil Nadu, Karnataka, and you may be given a match the column from this ki how do they harvest the water. So to in a nutshell I can say that water is very essential। आप चाहे खाना 2 मिनट नहीं खाओगे लेकिन पानी वो तो बहुत जरूरी है। Without water we cannot live, specifically in the you know when we are having summers, तो हम कैसे रहेंगे। आपको पेप्सी भी बनानी है तो पेप्सी के लिए भी तो पानी चाहिए होता है ना। तो water is very essential for domestic agriculture, industries, even our animals, and that is why it is very important that this important resource should be used with complete caution so that in the coming period we are not in the water scarcity का। सोचो कि हम अगर इंपोर्ट करके पानी मंगवा तो लेंगे लेकिन फिर हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, then we will not be able to drink what we want। That is why it is very important that we conserve water।